Leadership reminds us that improving learning outcomes is not the responsibility of schools alone. It's, as Prahlad said, it's a shared endeavor that calls for the collective efforts of government, educators, communities, parents, CDOs, CSOs, GBs, SNC chair, people all together that forms a collective, only to make sure that children learn and succeed. In this special conversation, our leaders will reflect on how we can work together as one system to ensure that every child has access to quality education and opportunity to realize their fullest potential. Over the next hour, this discussion will explore 5 leadership themes. May I request our esteemed panelists to kindly come forward and grace the dais. Can you all give a round of applause to DC sir? And our DDSC sir, can you all rise up and welcome them? Ladies and gentlemen, please rise up. Please be seated, sir. Please also welcome in inviting our moderator for today's session, Mr. Prahlad once again. So, our host and moderator for today's special conversation on leadership and governance, and especially on the theme of today's session as to how we can, who owns children's learning? Is it us? Is it me? Or is it the whole system? And who defines, who actually represents the system? It is everybody together. So to deep dive into today's conversation, here is our esteemed panelists. Okay? So over to you, Prahlad. We all please take notes, please take insights, and at the end of today's session, हमारे एक Q&A session होंगे. अगर आपके सवाल है, कुछ reflection है, कुछ thoughts है, आप कृपया आप पूछ सकते हो. So over to Prahlad. Thank you, sir. So over to you, Prahlad. We all please take notes, please take insights, and at the end of today's session, हमारे एक Q&A session होंगे. अगर आपके सवाल है, कुछ reflection है, कुछ thoughts है, आप कृपया आप पूछ सकते हो. So over to Prahlad. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, मैं डीसी सर को ये पैनल डिस्कशन में इनवाइट करता हूँ. हम लोग ने चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कशन चलते हैं. सो बहुत बार सिर्फ हमारे कम्युनिटी से नहीं, इनफैक्ट जितने सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स अलग अलग जात का. सो हम लोग को ये लगता है कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इज वेरी लकी, क्योंकि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डीसी आते हैं जो मतलब दूसरे डीसी से बहुत अलग होते हैं. वेरी यंग, एनर्जेटिक, प्रोएक्टिव. सो पहले जो 2 डीसी था, सो अभी जो सर आए हुए हैं, सो मतलब सब सेम बहुत ही हाईली प्रोएक्टिवनेस लेके आते हैं. और इनका जो प्रायोरिटीज है, जो कि एक डेवलप्ड नेशन के प्रायोरिटीज होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से प्रायोरिटी देते हैं. सो वी आर रियली लकी टू हैव यू सर. और यहाँ पे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से ही जितने सारे ऑडियंस यहाँ पे बैठा हुआ है. हम लोग ने पिछले 3-4 सालों में हम लोग ने 2 विदेशी देखे हैं. सर तो तीसरा विदेशी है, लेकिन सर का जैसा विदेशी आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट. मतलब सर को जब हम लोग ने दायूं में मिला था, सो थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने के बाद तो सबका वो पता चल जाता है. लाइक ही इज वेरी वेरी नॉलेजेबल. उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन रिलेटेड, एंड इफ ही रिलेटेड एजुकेशन में क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए, किस तरह से. सो ही इज अवेयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड ही डीपली केयर अबाउट एजुकेशन. सो इस तरह का डीसी मिलना हमारे डिस्ट्रिक्ट में वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट. सो वेलकम यू सर. सो आई होप कि ये कन्वर्सेशन के बाद 1 घंटे के बाद सबका एटलीस्ट जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर मौजूद है, तो सर लोगों का कन्वर्सेशन में
I hope कि everybody leaves with a very clear understanding of your own role in strengthening government public education. So सबसे पहले सर आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग basically you can take 5 minutes together. I mean you are free to say anything about probably about your priorities for the next 1 year कि आपका जो भी priorities होंगे education में आप किस तरह से one important priorities that you are thinking, right? So probably you can speak not as a DC but as the leader of the developmental पूरा district का सबसे बड़ा leader तो आप हैं सर, तो उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं. एंड जैसे सर आप बेसिकली आप तो चीफ एकेडमिक हेड है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उस नजरिए से आप बेसिकली बात कर सकते हैं. ओवर टू यू सर. Thank you, Prahlad. Thank you all for joining us today for this session. I'm very much excited. I can see many of the people video recording also, which is making me nervous. But definitely, I'll try my best to speak freely on this occasion. I'm joined by my colleague EDC Chandra. A lot has been spoken about PDC. Yes, of course, he's energetic. He has, in terms of number of visits that he does, is remarkably more than what earlier it used to happen. And as such, with respect to priorities, जो प्रहलाद ने बोला कि priorities बताना है बोल करके, तो priorities तो मुझे लगता है कि पिछले साल भी मैंने बताया था, इस साल भी बताया हूँ. जब रिजल्ट बर्बाद होता है तो उसके बाद मीटिंग में भी यही बताता हूँ. तो और जब अच्छा होता है तो भी हम लोग का प्रायोरिटीज कोई बदलता नहीं है. प्रायोरिटीज एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हो सकता है. वी आर द आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर द इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी हमें सरकार बोलती है, जो भी हमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलेगी, वही मेरा प्रायोरिटी है. एज ऑफ टुडे हम लोग का जो प्राइम केपीआई जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको गवर्नमेंट नापती है, गवर्नमेंट जिससे परफॉर्मेंस को मेजर करती है, गवर्नमेंट जिससे सोचती है कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर रहा है और ये डिस्ट्रिक्ट अच्छा नहीं कर रहा है, वो हमेशा से रहा है क्लास 10 और 12 का रिजल्ट. कोई अभी टॉपिक्स में भी था कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया जाए. एजुकेशन एज ए डिपार्टमेंट और या एजुकेशन एज ए डोमेन बहुत ही रेगुलेटेड डोमेन है. उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैन कम्स इन टिप्स एंड पीसेस, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में यू कैन ट्रांसफॉर्म द वे थिंग्स वेर बीइंग डन, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द एंटायर डोमेन टू बी ट्रांसफॉर्म because for that the way recruitment is being done, for that how our children skills are being mapped, how they are being employed, how the public leader view children or education system, everything has to be transformed. For that transformation to happen, I think at least मुझे लगता है कि स्टेट और ये कंट्री में मिलाकर के मुझे लगता है कम से कम 100 ऐसा एक्ट और रूल्स को अबैंडन करना पड़ेगा, एजेंसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. तो जब तक ये ऐसा नहीं हो रहा तब तक तो हम लोग वो लिमिटेड फ्रेम में ही काम करेंगे. तो प्रायोरिटीज को मैं रीइटरेट, जैसे कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग में भी करता हूँ, मुझे लगता है बीआरसी सीआरसी जो यहाँ मौजूद है और इवन जो एनजीओस पार्टनर एनजीओस है, हम लोग को भी पता है कि हम लोग का जो प्रायोरिटीज रहा है वो क्लास 10 और 12 का रिजल्ट ही रहा है. उसमें जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ोतरी कर पाए उतना बेटर रहता है. और क्लास 10 और 12 का रिजल्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ वी गो अहेड विद रिस्पेक्ट टू राइट फ्रॉम द आंगनबाड़ी itself. तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ों को आप ये फॉलो करेंगे, बहुत सारा चीज़ों को आप ट्राई करेंगे मेजर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. तो सभी चीज़ कितनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रही है उसका कोई इतना फिक्स ये नहीं हो सकता. बट मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मुझे भी ये गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी ठीक लगता है कि वी शुड पाइवोट टू वन थिंग एंड वी शुड रिवॉल्व अराउंड दैट ओनली. क्लास 10 और 12 का रिजल्ट्स इट माइट साउंड कि अरे आप लोग क्या स्कूल चला रहा है कि मतलब ऐसा कोई परफॉर्मेंस बोर्ड चला रहा है, एवरीबॉडी परफॉर्मेंस से देखा जा रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहे तो अच्छा नहीं है. तो एनी सिस्टम जो कि बहुत ही मतलब सही स्टेज में नहीं हो
तो और उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने हो तो उसमें एक चेंज को सेलेक्ट करना और उसी पे वर्कआउट करना बहुत अच्छा रहता है। अभी एजुकेशन सिस्टम में पूरा एक इकोसिस्टम हो चुका है। पहले एजुकेशन रहता था कि नहीं क्या अभी कहा जाता है कि नहीं बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि टीचर को पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, पेडागोजी का प्रॉब्लम है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे तो अच्छा पेरेंट्स लोग घर पे जाने के बाद ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बच्चे लोग की मतलब उनकी रुचि किसी और चीज़ में है और उनको कुछ और चीज़ एडमिनिस्टर किया जा रहा है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक वो एप्रोप्रिएट इतना नहीं है, उससे बेटर उनको कुछ टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स चाहिए होता है। बट आई बिलोंग टू द सेम एजुकेशन सिस्टम, मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ और यहीं का हायर सेकेंडरी पासीघाट से पढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि दोज वर सिंपलर टाइम्स एंड when the times were more simple, accountability was also very easy to fix. Today when I go and ask any principal कि क्या हुआ तो they will say कि हाँ everybody will start with एक ideal state में शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है फिक्स सैलरी है इसका मतलब हमारे टीचर्स रिलैक्स हो जाते हैं या फिर कम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। I mean अगर आप मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में भी देखेंगे तो salary only takes care of the basic needs, and after basic need you want to even realize your own self, you want to see yourself succeeding and you want to see the people who are with you also to succeed. When you want all these things, so that need cannot be satisfied with salary alone. And since the talk is about leadership, I assume all my principals, BRC, BO, everybody, our NGO partners also, they are exhibiting a form or leadership only. Leadership is much required क्योंकि with the limited resources we have to get many things done. Changlak is a resource-stressed place, so all the BO, BRCC, all the principals have to stretch beyond whatever is there with them and try to perform in the limited resources. Therefore, they are definitely supposed to undertake task as a leadership. So, जैसा मैं बता रहा था कि when we fix accountability, अभी बहुत सारे चीज जब हम लोग मेजर करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू फिक्स इट कि किस तरीके से ये रिजल्ट्स क्यों बर्बाद हुआ या फिर ये रिजल्ट्स अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कारण बढ़ जाता है। पहले था कि नहीं ठीक है टीचर्स को पढ़ाना है, उसके अलावा आई डोंट रिमेम्बर कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था या एसएमसी होता था, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट ऑन बुक थियोरेटिकली। दिस इंस्टीट्यूशन आर नॉट समथिंग दैट हैज बीन इन्विसाज्ड ओनली इन एनी वीक। वो बहुत समय से SMC and everything used to exist. Only thing was that कि उसको leverage नहीं किया जाता था. Most of the time it were the teachers and principals who used to undertake the task and they used to ensure that in time bound manner they complete the syllabus, they undertake test and then they are able to show some good performance. So इसी तरीके से रहा है। अभी क्योंकि performance बहुत सारे भिन्न प्रकार के फैक्टर से बिलोंग करने लग गया और गवर्नमेंट भी उसको रिकॉग्नाइज करने लगी है, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ टीचर्स का ट्रेनिंग नहीं करती है, गवर्नमेंट एसएमसी का भी ट्रेनिंग करा रही है। जितना मुझे पता है इवन दे ट्रेन पीटीएम के लिए भी हम लोग का स्पेसिफिक डायरेक्शन आता है। आईएसएससी सारे होल कंपोनेंट जो भी हम लोग का कंपोनेंट है, इवन हमारा सिविल वर्क से लेकर के कुछ There were still 60 to 67 schools are there where single teachers is there. Total of 267 schools we have got in our districts. 175 primary, 67 government upper primary, 15 secondary, 11 higher secondary is there. So in many of the schools we will see that there is no full place head of the schools. Secondary schools are run by the ISSC teachers, contractual teachers. Definitely, I'm not discouraging them. Definitely, we have got some sort of like leadership qualities not there. Because by seeing their personnel, by seeing their what's called that efficiency, we have assigned them to act as a head of the schools. But somewhere they also sometimes saying that sir, हम लोग तो contractual से बाकी को देने से ठीक है, तो कोई भी को फील होता है तुला। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में देखे मैंने काफी तुला, कोई भी उसको चांस को लेना नहीं चाहता, ये भी इश्यूज है। और आपका क्या बोलेंगे कि पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है काफी कमजोर है।
आपने जब भी पीटीएम मीटिंग कंडक्ट करता है तो उसमें भी देखिए आपका पेरेंट्स टीचर्स का जो पार्टिसिपेंट्स है बहुत पुअर है। ये भी एक मेजर इश्यूज है। आप स्कूल में बच्चा को भेज देते हैं, बच्चा क्या करता है, नहीं पढ़ाई करता है कि नहीं, सही में टीचर को कुछ पढ़ाता है कि नहीं, उसको भी आप चेक नहीं करता। नो डाउट टीचर्स काफी कोई शॉर्टेज है, पर भी टीचर्स का शॉर्टेज होने का बावजूद भी जहाँ सिंगल टीचर को अपना लेवल को दे रहा है, हाँ उसमें कुछ इश्यूज तो है। बहुत सी टीचर्स है, बहुत सी मैडम है, व्हेनेवर हम लोग का हर साल में देखे ये रिकरिंग टाइप का है। We are having a teachers training program every year. Sometime like yeah, ministry if they are not providing this fund for this teachers training, या उसमें तो कभी-कभी साल में तो हम लोग का आउट हो जाता है, मतलब इस टाइप का हम प्रोग्राम नहीं करा सकता है जब तक फंड हम लोग को मिनिस्ट्री से स्टेट से नहीं देने से। लेकिन नॉर्मली मिनिस्ट्री लोग हर साल वो रिकरिंग ग्रांट्स को देता है। कभी-कभी स्टेट में पैसा नहीं होने का कारण से वो लोग नहीं बेचता है, तो हम लोग का कम से कम 5 दिन का प्रोग्राम कराना है मिनिमम हर टीचर्स को। हर साल आपका इन सर्विस या ओरिएंटेशन जो अभी नया नया एमबीसीएस का थ्रू से पीजीटी जो अपॉइंट हुआ है, उन लोगों को भी क्या करना है कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देना है, किस टाइप का आपको क्लासरूम टीचिंग करना है, कैसे लेसन प्लान है, सो मेनी ओरिएंटेशंस आर गिवन हियर। और जो ऑलरेडी आपका सर्विस में है उसका इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग में उसमें कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, तो उसमें ये ट्रेनिंग होने का बावजूद भी क्या होता है कि बहुत से हमारा चांगलांग का स्पेशली यू डोंट टेक इट अदरवाइज, हम जेंडर्स को बाइसनेस नहीं कर रहा है। बहुत से मैडम लोग क्या करते हैं कि वो लोग सीएम देना शुरू करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं, मेरा बच्चा है, ये है 2 इयर्स का है, वो है, सिंगल पेरेंट्स है, ये तो अपना पर्सनल इश्यूज है। अभी तक 20 जैसे मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग का रिसेंटली आपका 13 से लेके कुछ वो था, ये जो स्टेट में एससीईआरटी में 3 डेज का प्रोग्राम, लेकिन डीसी साहब को बोल के मैंने वहाँ डायरेक्टर को बात करके इट इज स्विच ओवर टू द आपका सितंबर महीने का लास्ट पार्ट में रखा है। उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन एंटर नहीं, आपका उसको एनकरेज नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सबको जाना है। क्योंकि अभी ये लंबा चौड़ा हम कहानी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी बिकॉज अल्टीमेटम हमारा गोल क्या है कि वी हैव टू इंप्रूव द बोर्ड एग्जामिनेशन, 10 और 12 का रिजल्ट्स को हमको इंप्रूवाइज करना है। लेकिन आपका बेसिक जैसे सर ने बोला कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसको अभी जनरल टर्म्स में हम लोग फाउंडेशन स्टडी बोलता है, आपका 3 साल से लेके आपका ग्रेड 1 पे, जिसको ईसीसी प्री प्राइमरी, आपका 3 साल से बच्चा को आपको स्कूल में देना, फिर 4 साल में ग्रेड 2 में, 5 साल में आपका ग्रेड 3 में, और 6 साल होते होते आपका फाउंडेशन स्टडी शुरू हो जाता है। आपका क्लास 1 में लेके बच्चा को कितना नंबर्स तक जाना है, कितना तक वो आपका वर्डिंग को जानना चाहिए, उसमें जानना चाहिए। आपका 1 से लेकर 100 तक लिख सकना है, 2 + 2 4, कम से कम क्लास 1 तक आते आते बच्चा को जानना जरूरी है। और बाय द एंड ऑफ क्लास 3 सब बच्चा को कम से कम एक एप्लीकेशन लिखना जानता है, कम से कम न्यूमरेशन में वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। लेकिन सर ने सही पिन पॉइंट किया है, अभी क्या कर रहा है कि चैलेंजेस तो काफी है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, अनट्रेन टीचर्स ज्यादा है। ये कारण से क्या करता है कि आप अपना ड्यूटी को क्या करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कोई ब्लेम नहीं देने के लिए आप क्या करते थे कि बच्चा पढ़ाई करो या ना करो उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके भेज देता है। 5 फिर आप उसको फिर जीपीएस में भेज देता है अपर प्राइमरी में, फिर वहां भी सेम पैटर्न को बोलते कि मेरा केवल आपका 3 ही टीचर्स है, वो किस किस को पढ़ाएगा, तो फिर आप 8 पास करा देता और 8 पास करता, लेकिन उनका नॉलेज लेवल को डिक्रीज से क्या वो अभी भी देखिए एफएलएम लेवल पे ही है, क्लास 3 लेवल पे ही है, तो 9 में ऑलरेडी उसका एनरोल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको डिवाइड भी नहीं कर पाता है। तो ये कारण से क्या है कि क्लास बोर्ड का एग्जामिनेशंस का चांगलांग में खराब होने का कारण यहाँ है। हमारा बेल्ट में, हमारे निश्चित अधीन बेल्ट में जरूर ये होता है, मारपीट होता है, लड़ाई भिड़ाई होता है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा ठीक होने का कारण बच्चों में देखिए, अगर हम लोग क्लास नहीं आते तो सर ये देखिए राजीव सर क्लास नहीं पढ़ा रहा, इतना गट्स रखता है। लेकिन हमारा चांगलांग का ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 10 महीना चांगलांग हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल का इंटरव्यू होकर देखा है, तो बच्चा लोग टीचर से दे आर सो हैप्पी, वो लोग बाहर जाता है, चुपचाप बैठता है, कोई टीचर आओ ना कोई नहीं है। लेकिन मेरा वहां जाके देखिए, सीधा जाके बोलेगा ये बायोलॉजी टीचर राजीव लोंडा हम लोग को नहीं पढ़ाया, प्रिंसिपल को चुगली कर देगा, घर में जाकर स्कूल कैप्टन को बोल देगा।
तो हम लोग शर्म से क्या टीचर को बोलने के लिए दौड़ दौड़ के जाता है, और कोर्स कवरेज देने से सीधा बोल देता है किसी को तो जाने सर देखिए वो हम लोग का सब्जेक्ट टीचर हम लोग का कोर्स खत्म नहीं हुआ, पेरों से वो नेक्स्ट उठना पड़ेगा, टीचर्स को पूरा ब्लेम फेंक देता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारा स्कूल चांगला का बच्चा लोग ये करे, पर वे कुछ तो बोले ना, कुछ तो करे। चुपचाप साइलेंस है, पेरेंट्स से फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलता, तो ये सब इश्यूज है बिकॉज ऑफ दैट ओनली। और कम्युनिटी जैसे स्पेशली आपका आरटी नॉर्म्स में तो आपका 1 से आपका प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक आपका पंचायत लेवल तक इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और सर आप लोग का भी एसएमसी का भी क्लास पंचायत लेवल पे हमेशा ऑब्जर्व रखना है। बाकी को सर आप 11, 10, 11 तो टीचर्स को इतने नहीं देखने से भी जैसे भी प्राइमरी और अपर ग्रेड टीचर्स को अगर ड्यूटी नहीं करने से सर आप हेजिटेट नहीं करना है, आप मुझे दीजिए, मैं सस्पेंशन के लिए फाइल पुट अप करूंगा। सर के पास में अभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का पास एम्पावर है कि वो टर्मिनेशन तक भी कर सकता है, उसको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी डेप्यूटी कमिश्नर को ऑलरेडी वो दे चुका है। तो ये सब चीज को कलेक्टिवली हम लोग कर रहे थे, तब ना जाके आपका जो टर्म्स जो दिखाई दिया उसमें जो आपका स्टूडेंट अलाइनमेंट एंड क्या बोलते हैं कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो सकता है। अकेला आदमी तो नहीं होगा, वी शुड वर्क टुगेदर, देन ओनली वी कैन अचीव आवर टारगेट। शायद मैंने काफी समय लग रहा है, लेकिन बिफोर वाइंडिंग अप माय दिस आपका पॉइंट को